السلام علیکم دوستو، ایک واقعہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت جب آتا ہے، ان کے دور خلافت میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کون بیعت کرتے ہیں، کون کون بعد میں بیعت کرتے ہیں، سب واقعہ اس میں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں کہ کیسا واقعہ ہے۔ تو کہ آپ کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا لیڈر کون بنے گا جو کہ آپ کی لیگیسی کو جاری رکھ سکے، تو انصار ثقیفہ بنی ساعدہ نامی جگہ پر جمع ہوئے خلیفہ چننے کے لیے۔ یہ انصار وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے برے وقت میں سپورٹ کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار نے آپ پر اپنا جان مال سب کچھ خرچ کیا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا ایک طرف چلے اور انصار دوسری طرف تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا، میرا جینا مرنا انصار کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سارے صحابہ بیٹھے رو رہے تھے، تبھی کسی نے آ کر اصحاب کو خبر دی کہ وہاں انصار اگلا خلیفہ چن رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے، لیکن امام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تھے، تو اگلا خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قریش پورے عرب میں ایک پاورفل قبیلہ ہے۔ لیکن انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے سعد بن عبادہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے، جس پر سب نے اتفاق کیا، اور سب نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے۔ امام علی علیہ السلام کو جب یہ سب پتہ چلا تو آپ نے بھی 6 مہینوں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کچھ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ چننا ٹھیک نہیں لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے بعد امام علی علیہ السلام کی عظیم بیوی اور میری روحانی ماں حضرت فاطمہ علیہ السلام وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور انہیں بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد فتنے پیدا ہونے لگے اور بغاوت شروع ہو گئی، جیسا کہ کچھ مسلمان قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی منافقوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مسلمہ بن کذاب اور طلیحہ۔ اس کے علاوہ بھی عرب کے کئی علاقوں میں بغاوت ہونے لگی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ سب چیلنجز تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ایک فوج بھیجی طلیحہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا سامنا طلیحہ کی فوج سے ہوا، اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی اور طلیحہ یہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن طلیحہ اکیلا انسان نہیں تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے علاوہ ایک اور جھوٹا انسان تھا جس کا نام مسلمہ بن کذاب تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو کہ خود بھی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی تھی، جس کا نام تھا
सजा, इन दोनों ने शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इक्रमा और शुराबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा की लीडरशिप में इनके खिलाफ फौज रवाना की, लेकिन मुसलमा और सजाह के पास भी काफी मिलिट्री पावर थी, जिससे मुसलमान इनको हरा नहीं पा रहे थे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी प्लानिंग से मुसलमा को हरा दिया और इसे कत्ल कर दिया। मुसलमा की मौत को देखकर सजाह ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया और इनके फॉलोअर्स भी दोबारा से मुसलमान हो गए। इसके बाद एक और झूठा नबी अल असवद खड़ा हुआ और उसने यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ लोकल मुस्लिम लीडर्स ने इसे कत्ल कर दिया। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन इलाकों में फौज भेजी, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ की सिचुएशन अब काबू में है। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुनकरीने ज़कात के खिलाफ फौज तैयार की, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने डिफरेंट इलाकों में रहने वाले मुनकरीने ज़कात से जंग की और इसके बाद कबीला बनु तमीम के लीडर मालिक इब्ने नवीरा के साथ जंग की और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इन कबीलों के लोगों ने वापस से ज़कात देना शुरू कर दी। इसके अलावा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने लोगों को इस्लामी उसूल सिखाने के लिए रिलीजियस नॉलेज फैलाना शुरू किया ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और ज़कात जैसी चीजों की इंपॉर्टेंस को समझें। आपने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो कि ज़कात को ईमानदारी के साथ जमा करें और इस तरह ज़कात जमा करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिस तरह आज पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त ज़कात मुसलमानों का टैक्स था। मुनकरीन ज़कात का मसला हल होने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्शियन एम्पायर से लड़ने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर एक काफी पावरफुल एम्पायर थी जो कि इस्लाम के लिए खतरा थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी ताकि पर्शियन एम्पायर से जंग करे। ये जंग दरियाए फुरात के करीब लड़ी गई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करते हुए पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और इस तरह मुसलमान ये जंग जीत गए और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद यहाँ भी नहीं रुके। आपने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फिर से जंग की ताकि बाकी हिस्सों पर भी पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल खत्म कर सके। इसी वजह से एक और जंग हुई जिसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग को जंग उलैस यानी बैटल ऑफ ब्लड रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट एक और पावरफुल एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर से था। बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी जो कि काफी पावरफुल थी। ये रोमन एम्पायर इस्लाम के लिए खतरा बन चुकी थी। इस रोमन एम्पायर के रूलर का नाम हेराक्लियस था। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक फौज के साथ रोमन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए भेजा। ये जंग अजनादेन में लड़ी गई, जिसे आज हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा की ग्रेट लीडरशिप की वजह से मुसलमान ये जंग जीत गए। इसके एक साल बाद 635 ईस्वी में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रोमन एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नेगोशिएशंस और मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गए। हजरत अबू बकर ने अपनी मौत से पहले मुसलमानों से मशवरा करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा को खलीफा बना दिया। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस और सीरिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अब रोमन एम्पायर का रूलर हेराक्लियस इन शहरों को मुसलमानों से दोबारा वापस हासिल करना चाहता था, क्योंकि सीरिया रोमन और इस्लामिक एम्पायर दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। यहाँ से कई ट्रेड रूट्स बने थे, इसलिए ये जंग हुई जिसका नाम है जंगे यरमूक। इस जंग से पहले अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में खालिद
बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ही फौज के कमांडर थे और वो हर जंग जीते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ की पोस्ट से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जराह रजी अल्लाह ताला अन्हा को आर्मी चीफ बना दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पास्ट में कुछ चीजें अपनी मर्जी से की थी जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा पसंद नहीं करते थे। जब मुसलमानों को ये पता चला कि खालिद बिन वलीद आर्मी चीफ नहीं रहे तो सब हैरान हो गए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम पिछली सारी जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से ही तो जीते थे। अलीर मुक्तरिया के पास मुसलमानों का सामना रोमन एम्पायर से हुआ। इस जंग में मुसलमानों की फौज तकरीबन 40,000 थी और रोमन एम्पायर तकरीबन 1 लाख तक थी। ये जंग 6 दिनों तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों ने फेंड रिट्रीट टैक्टिक का यूज किया। इस टैक्टिक में फौज अपने दुश्मन को वीक पोजीशन में लाने के लिए पीछे हटती है, जिससे दुश्मन जाल में फंस जाता है। इन्हीं टैक्टिक का यूज करके मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग में तकरीबन 3 से 4 हजार मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस जंग के बाद मुसलमानों को खुतबा दिया कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि हम ये जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं बल्कि खालिद के रब की वजह से जीते थे। इस जंग के बाद सीरिया और फिलिस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे और रोमन एम्पायर भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। इस जंग के बाद अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का अगला टारगेट पर्शियन एम्पायर थी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर उस वक्त कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, जो कि मुसलमानों के लिए हमला करने का सही मौका था। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि ये उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के साथ जंग थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा इस जंग में खुद जाना चाहते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको जाने से रोक दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप इस जंग में शहीद हो गए तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह न करे अगर मुसलमान ये जंग हार भी गए तो दोबारा फिर से हम फौज लेकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग कर लेंगे। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जंग लड़ने नहीं गए। कुछ टाइम डिस्कशन करने के बाद ये फैसला किया गया कि इस जंग का कमांडर साद बिन अबी वकास को बनाकर भेजा जाए। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तकरीबन 30,000 के लश्कर के साथ इराक के इन हिस्सों पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जिन हिस्सों पर पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल था। इराक का ये हिस्सा काफी अमीर और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। जब पर्शियन एम्पायर के बादशाह याज़देगिर्ड को इसका पता चला तो इसने तकरीबन 60 से 1 लाख के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ फौज भेजी। इस फौज का दरियाए फुरात के किनारे पर कादसिया नामी शहर पर मुसलमानों से सामना हुआ। इसी वजह से इसे जंग कादसिया कहते हैं। लेकिन इस जंग में पर्शियन एम्पायर के पास बड़े बड़े हाथी थे, जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अरब के मुसलमानों ने कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े हाथियों को देखकर डरने लगे और इनके पास जाने से डरते थे। तो मुसलमानों ने तीरों से हाथियों पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाया और एक एक करके इन्हें मारने लगे। इसी तरह जो मुसलमान घोड़ों पर सवार थे वो घोड़ों से उतरकर नेज़ों से हाथियों पर बैठे लोगों को निशाना बनाने लगे, जिससे कई मुसलमान हाथी के नीचे आकर शहीद हो गए। इसके अलावा भी मुसलमान आग और ऊंची आवाजों का यूज करके हाथियों को डराने लगे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जंग नहीं लड़ सके, क्योंकि वो उस वक्त बीमार हो चुके थे, लेकिन वो मुसलमानों को फिर भी गाइड करते रहे। ये जंग लगातार 4 दिन तक लड़ी गई। इस जंग में 8,500 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब कर दी और दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को मुसलमानों ने हरा दिया। जंग कादिसिया जीतने के बाद साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अलमदाइन शहर को कब्जे में लेने का फैसला किया। ये पर्शियन एम्पायर का कैपिटल था। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी फौज के साथ इस शहर के बाहर कैंप लगा दिए और सप्लाई लाइंस काट दी और इस शहर के डिफेंस पर हमला करने का प्लान बनाया। कई दिनों तक हमला करने के बाद आखिरकार मुसलमान इस शहर की बाहरी दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो गए, जिसे देखकर पर्शियंस पीछे हटने लगे।
और इस तरह मुसलमानों ने इस शहर को कब्जे में ले लिया। इस शहर को छोड़ने के बाद पर्शियन फौज जलूला नामी शहर की तरफ चली गई। ये शहर पर्शियन एम्पायर के इम्पोर्टेंट रास्तों को कंट्रोल करता था। पर्शियन फौज ने इस शहर को खंदकों और रुकावटों से प्रोटेक्ट कर लिया। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हाशिम बिन उतबा की लीडरशिप में एक लश्कर रवाना किया, जिसका काम इस शहर पर कब्जा करना और इसके आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में करना था। मुसलमानों ने इस शहर को घेर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी। मुसलमानों ने इस शहर को कई महीनों तक सीज किए रखा, क्योंकि इस शहर में दाखिल होना बहुत मुश्किल था। इसके आसपास खंदकें थी। आखिर कुछ वक्त बाद मुसलमान किले और खंदक को तोड़ने में कामयाब हो गए और ये शहर फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से पर्शियन एम्पायर का ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस से एक्सेस टूट गया, क्योंकि इस शहर से इन दोनों इलाकों के रास्ते कंट्रोल होते थे। दूसरी तरफ जब मुसलमानों ने जंगे यरमूक में फतह हासिल की तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौज लेकर यरूशलेम पहुंच गए, क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत अजीम शहर था। यहाँ मुसलमानों का पहला किबला और मस्जिद अक्सा थी। इस शहर की हिफाजत रोमन्स और क्रिश्चियंस दोनों की फौज करती थी। मुसलमानों ने इस शहर को सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी, क्योंकि शहर की दीवारें बहुत ऊंची थी और हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। कई महीनों तक शहर को सीज करने के बाद आखिरकार शहर की फौज सरेंडर करने पर राजी हो गई। यरूशलेम के रूलर सोफ्रोनियस ने कहा कि हम एक शर्त पर सरेंडर करेंगे, अगर तुम मुसलमानों का खलीफा खुद यहाँ आएगा। मुसलमान इस बात पर राजी हो गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना से यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। यह 700 मील का सफर था, जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इनका एक खादिम था और सिर्फ एक ऊंट था। कभी हजरत उमर ऊंट पर सवार होते, कभी इनका खादिम, और इस तरह कई दिनों तक सफर करते करते जैसे ही हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो वहां के प्रीस्ट और इनके रूलर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सादगी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया और बगैर खून का एक कतरा भी बहाए ये शहर फतह हो गया। यरूशलेम फतह होने के बाद अब अगली बारी इजिप्ट की थी। इजिप्ट रोमन एम्पायर का बहुत ही अमीर प्रोविंस था और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। मुसलमान इस हिस्से पर रोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म करना चाहते थे। अमर बिन आस ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इजिप्ट पर हमला करने का मशवरा दिया। हजरत उमर को इनका मशवरा सही लगा और आपने 4000 की फौज जमा की और अमर बिन आस 4000 के लश्कर के साथ इजिप्ट में एंटर हुए और हिलियोपोलिस सिटी की तरफ बढ़ने लगे। इजिप्ट में मौजूद रोमन फोर्सेस के लीडर थियोडोर एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों के खिलाफ आया और पूरी फौज इस शहर के अराउंड खड़ी हो गई। मुसलमानों ने इन पर पूरी ताकत से हमला किया और बड़ी बहादुरी से लड़े, जिसके बाद ये शहर भी फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से रोमन एम्पायर का इजिप्ट पर कंट्रोल भी कमजोर हो गया और इस शहर को फतह करने के बाद मुसलमान अब बेबीलोन के किले की तरफ चल पड़े। ये इजिप्ट का एक मिलिट्री सेंटर था। मुसलमानों ने इस शहर को एक बार फिर सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी, क्योंकि इस किले की दीवारें बहुत मजबूत थी। मुसलमानों ने इस किले को कई महीनों तक सीज किए रखा और काफी बार हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुसलमानों ने इस किले का वीक पॉइंट तलाश कर लिया और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और मुसलमानों ने ये किला भी फतह कर लिया। इस किले की फतह से मुसलमानों की मिलिट्री पावर और इसके आगे की वाकया मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो पार्ट 2 में देखेंगे इसके आगे क्या क्या होता है और दौरे खिलाफत और किसका किसका आता है। तो पार्ट 2 का आप इंतज़ार करें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो शुक्रिया, तो आप लोग लाइक कमेंट वीडियो करें। तो इस तरह का वीडियो बनाऊं, अच्छा है तो कमेंट में जवाब दीजिए।